السلام علیکم، آپ تک میں ہوں زارا عباس۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملک بھر میں 10 روز کے لیے چینی 70 روپے کلو فروخت کرنے کا حکم۔ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد 10 روز کے لیے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر مشروط حکم امتناع جاری کر دیا۔ وفاق، شہزاد اکبر، ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جس مقصد کے لیے کمیشن بنا تھا وہ حل نہیں ہوا۔ اگر کمیشن نے عام آدمی کو چینی کی دستیابی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، پھر کیا کیا؟ چینی عام آدمی کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی اس حوالے سے ہی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ پیٹرول اور آٹا بحران کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس قیصر رشید نے ریمارکس دیے کہ عوام تکلیف میں ہے، فائدہ میٹنگز کی جا رہی ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے ہی آٹے کا مسئلہ تھا، پیٹرول کا مسئلہ ہے۔ عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول کمپنیوں نے مافیا بنایا ہوا ہے، پیٹرول مافیا عوام تک ثمرات پہنچنے نہیں دے رہی۔ اس مافیا کے خلاف پہلی دفعہ کارروائی ہو رہی ہے۔ کمپنیوں کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور اگلے 3 دن میں صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مریم اورنگزیب کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خود کو گھر پر کوارنٹائن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ حمزہ شہباز کی احتساب عدالت میں گفتگو، بولے کہ پاکستان پر بہت مشکل وقت ہے۔ احسن اقبال، سینیٹر ثنا جمالی بھی کرونا وائرس کا شکار۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی خرمشیر زمان میں بھی کورونا کی تصدیق۔ ودین میں کورونا فوکل پرسن ڈاکٹر وسیم عباس بھی متاثر۔ پاکستان میں کورونا وائرس کا ایک اور مہلک وار، ایک ہی دن میں 101 افراد جاں بحق، مزید 5834 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 2356 تک پہنچ گئی۔ کیسز کی مجموعی تعداد 1,19,536 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 45,463، سندھ میں 43,790 کیسز کی تصدیق۔ اب تک 38,391 مریض صحتیاب۔ پشاور میں بیرون ملک سے آنے والی 3 پاکستانیوں کی میتیں آبائی علاقے بھیج دی گئیں۔ آرمی چیف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال اور انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ صحت عامہ کے حوالے سے فوج اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ کورونا وبا کے باوجود آئندہ چند ہفتوں میں انسداد پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں مطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس نے ہڑتال کر دی۔ صوبے بھر میں او پی ٹیز بند، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ گرین ہیلتھ الائنس کے مطالبات میں ہیلتھ رسک الاؤنس، حفاظتی کٹس کی فراہمی، شہداء پیکج کا اعلان شامل۔ توشہ خانہ نے گاڑیاں لینے کے ریفرنس پر سماعت۔ اسلام آباد کے احتساب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لندن میں پاکستانی سفارت خانے کی وارنٹ کی تعمیل کرنے کا حکم۔ آصف زرداری کو طلبی کا دوبارہ نوٹس جاری۔ یوسف اظہر گیلانی کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست پر نیب سے جواب طلب۔ ایل این جی ریفرنس کورونا وائرس سے متاثر شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت۔ شہباز شریف کی کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ پیش۔ عدالت نے سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی۔ حمزہ شہباز آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے دوبارہ طلب۔ حمزہ شہباز کے بغیر اجازت بیٹھنے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔
वाइट एरिया कराची में वाक़ई फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 8 फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आइंदा माली साल के तरक्याती बजट और कौमी शरह नमू के अहदाफ की मंजूरी। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को 10 अरब रुपए तक मंसूबों को मंजूर करने की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने नान रोटी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। नरखों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतजामी इकदाम उठाने का हुक्म। उस्मान गुलजार कहते हैं कि नान रोटी की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। काबीना कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। इंतजामिया भी नान रोटी की मुकर्ररा करदा नरखों में दस्तयाबी यकीनी बनाए। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बुहरान 11वें रोज में दाखिल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों में ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA की पेट्रोलियम बुहरान पर तहकीकात। वजारत पेट्रोलियम कमेटी का FIA के हमरा की माड़ी ऑयल फील्ड पर निजी कंपनी के डिपो का मुआयना। 2 कंपनीज के CEOs पर मुकदमे की सिफारिश। 3 पेट्रोलियम कंपनियों के सरबराहान आज तलब। रेलवे मुलाजिमीन के मुस्तकली से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी रेलवे को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस से रिमांड दिए। रेलवे के अंदर कोई तरीक़ाकार नहीं, इसलिए रेलवे का ये हाल है। हमें कोई एक कागज दें जिससे पता चले कि ये रेलवे के मुलाजिमीन हैं। कुछ पता नहीं चल रहा ये तकर्रियां कौन कर रहा है। रेलवे ट्रैक पर गेट कीपर जैसे अहम जगह पर आरजी लोगों को तैनात किया गया। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर दिली अफसोस है। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ क्वारंटीना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर दिली अफसोस है और उम्मीद है कि शहबाज शरीफ क्वारंटीना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द रुबा सेहत फरमाए। मजीद बात करेंगे इस बारे में इमरान भट्टी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर कहा है कि शहबाज शरीफ का कोरोना पॉजिटिव होने पर दिली अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जल्द रुबा सेहत फरमाए और साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना में मुब्तला दीगर जो लीगी कायदीन के लिए भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। शहबाज शरीफ का सेहतमंद रहना पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि उम्मीद है शहबाज शरीफ क्वारंटीना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इकदामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया बीट करने के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपनी अदालत और नैब पेशी पर बुलाए गए कारकुनान के टेस्ट करवाए। हाईकोर्ट में करप्शन के जुलूस के साथ पेशी के बाद शहबाज शरीफ खुद उसके जिम्मेदार हैं। लाहौर से इतलात हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को जल्द सेहतयाब करे। क्या शहबाज शरीफ ने अदालत और नैब पेशी पर बुलाए गए कारकुनान के टेस्ट करवाए हैं? हाई कोर्ट में करप्शन के जुलूस के साथ पेशी के बाद शहबाज शरीफ खुद उसके जिम्मेदार हैं। ड्रामा शरीफ ने सियासत के लिए दर्जनों कारकुनान की जिंदगियों को खतरे में डाला। करप्शन से इकट्ठी की हुई दौलत के अंबार में से गरीब कारकुनान के भी टेस्ट करा दें। मुसर्रत जमशेद चीमा ने यह सवाल किया है।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबे में 1000 से ज़ायद बच्चे कोरोना से मुतासर हुए हैं। अहम खबर है, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सूबे में 1000 से ज़ायद बच्चे कोरोना से मुतासर हैं। इस पर हम बात करेंगे शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और अब इस इजाफे में जो है वो 10 साल से कम बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो भी शामिल है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एक ट्वीट कहा है जिसमें कहा गया है कि सुबह भर में 1712 बच्चों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। ये तमाम बच्चे जो है वो 10 साल से कम उम्र के हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 4 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरी जो है वो एहतियात करें और अपने बुजुर्गों की खातिर जो है वो घरों से बाहर ना निकले ताकि वो इस वायरस का शिकार ना हो जाएं। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शफकत हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने हड़ताल कर दी है और इतलात हैं कि सरकारी अस्पतालों में OPDs भी बंद कर दी गई हैं और मुजाहिरीन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम मुतालबात पूरे करे। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद हो गई हैं। हेल्थ रिस्क अलाउंस और हिफाजती किट्स की फराहमी का मुतालबा किया गया है। शोबा सेहत के मुलाजिमीन के लिए शोधा पैकेज का ऐलान किया जाए। डॉक्टर्स ने ये मुतालबा किया है। सिंध के तमाम अस्पतालों में मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए जाएं और डॉक्टर्स ने यह भी मुतालबा किया है कि निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज सर्विस मुहैया की जाए। ग्रीन हेल्थ अलायंस ने 13 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत सिंध को पेश कर चुकी है। सिंध के सरकारी अस्पतालों से इतलात हैं जहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने हड़ताल कर दी है। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद कर दी गई हैं। वहां पे सूरत हाल क्या है, डॉक्टर्स ने क्या मुतालबात किए हैं, शफकत अजीज से इस बारे में जानेंगे। शफकत, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुबह भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल ने जो एहतजाज करते हुए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एक हफ्ता कबल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था कि वो पीर से लेकर जुमेरात तक जो है वो टोकन साइड करेंगे। ताहम उनके अगर मुतालबात ना हुए तो आज यानी कि जुमेरात से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान करेंगे। तो आज उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो उन्होंने तमाम सरकारी अस्पतालों की जो है सूबे भर में OPDs बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ वर्कर्स का जो कहना है कि उनके हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए, हिफाजती किट्स जो है उन्हें फराहम की जाए। साथ उनका ये भी मुतालबा है कि शोबा सेहत के मुलाजिमीन के लिए शोधा पैकेज का ऐलान किया जाए, जबकि सिंध के तमाम अस्पतालों में मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाए। इसके साथ जो है उन्होंने ये मुतालबा किया है कि शोधा पैकेज का जो है फिर उन्होंने मुतालबा किया है। 13 नुकाती चार्ट ऑफ डिमांड उन्होंने सिंध हुकूमत को पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जो है वो हड़ताल कर दी है। डॉक्टर का कहना है कि पीर तक जो है हम ये हड़ताल करेंगे। ताम इस दौरान ICU और जो कोरोना के जो वार्ड है वो खुले रहेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना हुए तो हम इन वार्ड में भी काम बंद कर देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत पर आयद होगी। जी ठीक है शफकत, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ने हड़ताल कर दी है। सरकारी अस्पतालों में OPDs भी बंद कर दी गई हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम मुतालबात पूरे करे। शफकत अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेस्ले फ्रूटा बाइटल्स की पूरी पाकिस्तान में सार्फिन के लिए 2020 की सबसे बड़ी पेशकश है। न कोई लकी ड्रॉ और न ही इंतजार। नेस्ले फ्रूट बाइटल्स 200 मिलीमीटर के हर पैक पर 300 GB और जैज सुपर डेटा स्क्रैच करें और जीते सबके लिए फौरी जीते। हर रोज ज्यादा से ज्यादा पैक खरीदते रहे, स्क्रैच करते रहे और मजीद जीतिए और अपने पास भी रखिए दुकान पर आसानी से दस्तयाब नेस्ले फ्रूटा बाइटल्स प्रमोशन पैक। और वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।